Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate a very interesting story of the snow crane. Once upon a time, hundreds of years back, there lived an old man and his wife. They used to gather firewood in the forest and sell it in the town nearby to earn their livings. 100 साल पहले एक बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ अपने खाने के लिए फायरवुड को कलेक्ट करते थे, उसको बेचते थे अपने पास के टाउन में और पैसा कमाते थे. One day when the snow was falling softly, the old man set off for the town to sell firewood. All around him lay a silvery world of mountains and forests. Suddenly he heard strange sound from across the field. He hurried to take a look. How astonished he was to see a beautiful snow crane. Astonished means surprise होना, आश्चर्यचकित होना. It had a red beak and white glossy wings. It was caught in a hunter's trap. एक दिन जब वो फायरवुड को बेचने के लिए जा रहा था तो उसने अजीब सी आवाज़ सुनी. बूढ़े आदमी ने अजीब सी आवाज़ सुनी. जब उसने देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? एक क्रेन जिसकी रेड बीक थी और ग्लॉसी विंग्स थे, हंटर्स के ट्रैप में जो है वो फंसी हुई थी. क्विकली द काइंड हार्टेड मैन सेट द ट्रैप बर्ड फ्री. ही स्ट्रोक्ड इट्स सॉफ्ट एंड क्विवरिंग विंग्स affectionately and let it fly away. Quivering means कांपते हुए. जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने देखा उसको कि वो क्रेन जो है जाल में फंसी हुई है, तुरंत उसने जो है उसको बर्ड को फ्री किया. उसके जो पंख थे, सॉफ्ट पंख, जो उसको प्यार से जो है उसने थपथपाया और उसको जाने दिया. काऊ काऊ sang the snow crane happily as it circled over the man a few times and flew away towards the mountains. Then the old man set off to the town to sell firewood. Finally, bird जो है अपना काऊ काऊ का साउंड क्रिएट करते हुए, गाते हुए वहाँ से चली गई और वो टाउन चला गया फायरवुड को बेचने के लिए. Firewood for sale, firewood for sale, he hawked because there were few or negligible people seen on the snowy streets. He couldn't sell even half his bundle. He returned home disappointed. Disappointed? निराश होना. Disappointed means निराश होना. जब वो फायरवुड बेचने के लिए गया तो वहाँ सब जो लोग थे वो नहीं लेना चाहते थे, नेगेटिव एटीट्यूड के थे, तो वो वहाँ पर उनको नहीं बेच पाया और वहाँ से जब वापस आया तो वो बहुत उदास था, बहुत निराश था. Later that evening, as the old couple sat in their cottage drinking green tea, they heard the howling of the wind. Soon, a fearful snowstorm began to blow. Then suddenly, they heard a feeble voice. Feeble voice? Weak voice. कमज़ोर आवाज़. जब वो वहाँ पर बैठे हुए अपनी ग्रीन टी पी रहे थे, अचानक से जो है उन्होंने आवाज़ सुनी और उसके बाद क्या हुआ? स्टॉर्म आने लगा, जिसमें जो स्नो का स्टॉर्म था वो आने लगा और अचानक से उन्होंने आवाज़ सुनी. बहुत वीक आवाज़ थी जो उनके कानों में आई. ओपन द डोर प्लीज़, आई एम डाइंग ऑफ कोल्ड, इट प्लीडेड. प्लीडेड रिक्वेस्ट करना. क्या रिक्वेस्ट किया उस फीबल सी वॉइस ने? कि डोर ओपन करो, मैं ठंड से मर रही हूँ. द ओल्ड वुमेन opened the door and was surprised to see a beautiful girl standing outside trembling in the cold. जैसे ही उन्होंने डोर को खोला, एक सुंदर सी लड़की जो है उस ठंड में कांप रही थी और वो वहाँ पर खड़ी थी. The old woman let the young girl in.
Where have you come from on such a freezing night? Asked the woman. How can we help you? कहाँ से आई हो इस freezing night में? और हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? I lost my way in the storm. Please let me stay with you tonight. The young girl pleaded. उसने रिक्वेस्ट करी कि मैं इस तूफान में खो गई हूँ और मुझे यहाँ पर एक रात के लिए आप जो है अपने साथ रहने दीजिए. You are most welcome here, the old woman said kindly, offering her a bowl of hot green tea. उसने क्या करा? जो हॉट ग्रीन टी का बोल था वो उसको दिया और उसका वेलकम किया. After resting a while, the girl cooked meal for the old couple. Soon they were all fast asleep. थोड़ी देर आराम करने के बाद लड़की ने खाना बनाया और उसके बाद सब ने जो है आराम किया, सब सो गए. Next morning, before the old couple woke up, she had already swept the house, washed the clothes, and cooked some breakfast. The storm was still fires outside. अगली सुबह क्या हुआ? ओल्ड कपल उठता उससे पहले ही लड़की ने घर का सारा काम कर दिया, सफाई का, खाना बनाने का, और अभी भी जो बाहर तूफान था वो बहुत खतरनाक था. We cannot let you go home in this bad weather, said the old man to the girl. क्या कहा ओल्ड मैन ने कि इस वेदर में मैं तुम्हें घर नहीं जाने दे सकता. Father, I am all alone and I don't have anywhere to go, said the girl tearfully. Tearfully means आंसुओं से भरी हुई थी. लड़की ने आंसुओं के साथ क्या कहा कि मेरे पास जाने के लिए कहीं भी नहीं है, मैं अकेली हूँ. We are old and lonely. We shall be happy to have you with us, he replied, smiling at her. हंसते हुए उसने क्या कहा कि हम यहाँ पर अकेले हैं और तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें खुशी होगी. But their cause of worry was no money for food. When the girl came to know about this, she gave them some gold coins and said, "Take these and buy some food and silk yarn to weave cloth for kimono." उनकी चिंता का विषय क्या था? उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, तो गर्ल ने उनको क्या दिया? कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए और क्या कहा? इसको लेकर के कुछ खाना और सिल्क यार्न को ले आओ ताकि हम उससे किमोनो के लिए क्लोथ बना सके. द ओल्ड मैन डिड द सेम. द गर्ल देन शिफ्टेड एन ओल्ड लूम टू द स्टोर रूम आउटसाइड द कॉटेज. ओल्ड मैन ने वैसे ही किया और लड़की ने लूम को कहाँ शिफ्ट कर दिया? जो कॉटेज के बाहर जो स्टोर रूम था वहाँ कर दिया शिफ्ट. आई विल बी वीविंग फॉर 3 days. Neither I will come out, nor I will eat or drink. I want you to promise me that you will never look inside to see what I am doing. लड़की ने क्या कहा कि मैं 3 दिन के लिए वीविंग के लिए जाऊंगी और ना तो मैं वहाँ से बाहर आऊँगी, ना ही खाना खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊँगी. और मुझे प्रॉमिस करिए कि मुझे वहाँ देखने के लिए कोई नहीं आएगा. जब तक मैं काम कर रही हूँ मुझे ये देखने के लिए कोई नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ. द ओल्ड कपल प्रॉमिस्ड द यंग गर्ल. The girl took the silk yarn and went into the storeroom. On the 3rd day, the girl came out. She had a length of shimmering silk cloth and she looked tired. Shimmering silk? Shimmering means जो चमकदार होता है, जो चमकता है. 3rd day वो जो है बाहर आई और उसके पास क्या था? शिमरिंग सिल्क क्लोथ था, लेकिन वो बहुत टायर्ड भी लग रही थी. Father, please sell this in the market and buy me another bundle of silk yarn, said the girl. Next morning, he went to the town selling and singing merrily. Merrily? Merrily means happily, खुशी से. Sparkling silk for you I bring, fit for a queen and fit for a king, gold brocades with flowers of dew, made for a princess, fit for you. क्या कहा उसने कि मैं क्या लेकर के आया हूँ? सिल्क क्लोथ लेकर के आया हूँ जो प्रिंसेस के लिए बिल्कुल फिट है. Oh, how gorgeous! cried the people who saw it. He got 2 bags of gold
and silver for cloth. He bought clothes and food and also another bundle of silk yarn for the girl. लोगों को वो बहुत पसंद आया. उसके बाद उसने क्या किया? क्लोथ्स भी खरीदा और फूड भी खरीदा और ला करके उस लड़की को दिया. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग द गर्ल अगेन टुक द यार्न इनटू द स्टोर रूम. फिर जो है वो यार्न को स्टोर रूम में ले गई. दिस टाइम द ओल्ड वुमेन बिकेम क्यूरियस टू नो. अब इस समय ओल्ड वुमेन जो है क्यूरियस हो गई थी ये जानने के लिए what the girl is doing inside, although she has had no food and water for 3 days and yet she weaves so beautifully. क्या जानना उसने कि लड़की अंदर कर क्या रही है? खाना भी नहीं खाती है, पानी भी नहीं पिया 3 दिन से और फिर भी जो है बहुत ब्यूटीफुली उसने वीविंग करी है. Why don't you peep into the room to find out? She said to the old man. ओल्ड मैन को क्या कहा कि वहां से रूम के अंदर झांको, देखो. नो, वी मस्टंट डू दैट, क्राइड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन क्या चिल्लाया कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए. बट आई विल लुक, सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने क्या कहा? लेकिन मैं तो देखूंगी. शी लुक्ड इनटू द स्टोर रूम थ्रू अ चिंक इन द विंडो. शी ऑलमोस्ट फेंटेड. फेंटेड, बेहोश हो जाना. A beautiful snow crane was at the loom. She was plucking the soft feathers from her body with her beak and weaving them into the thread to make the gleaming cloth. Her poor body was almost bare of the shiny down feathers. क्या देखा? अंदर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ. ब्यूटीफुल क्रेन अपनी बॉडी से जो है अपनी बीक से उन फेदर्स को निकाल रही थी और क्लोथ बना रही थी, वो चमकदार क्लोथ बना रही थी. हेल्प हेल्प, क्राइड द ओल्ड वुमेन. आवर लिटिल डॉटर हैज बिकम अ स्नो क्रेन. द गर्ल हर्ड द वुमेन एंड साइलेंटली केम आउट ऑफ द रूम विद द लेंथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिल्क क्लोथ इन हर हैंड. लड़की ने आवाज़ सुन ली और बाहर आकर के उसने जो है बहुत सुंदर जो लंबा सा बनाया हुआ था सिल्क क्लोथ वो लेडी को दे दिया. I am the snow crane. Father rescued and I wanted to repay his kindness. Rescued? Rescued means bachana. Laying the cloth, she said sadly, so I changed myself into a girl and have been looking after you as if I were your own daughter. I have done all I can do to help you. Please sell it and you will have enough to live on for the rest of your life. क्या कहा उसने कि मैं वही क्रेन हूँ जिसको फादर ने बचाया था और उनकी काइंडनेस का मैं बदला चुकाना चाहती थी. तो मैंने क्या किया? गर्ल का रूप लिया और आपकी हेल्प के लिए आई. अब जो है मैंने इतना आपके लिए कर दिया है कि पूरी ज़िंदगी आप आराम से रह सकते हो. Our sweet child, I broke your promise, but please don't leave us, said the old woman sadly. Sadly means उदास होते हुए, दुखी होते हुए उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी प्रॉमिस को तोड़ा, लेकिन यहाँ से प्लीज़ मत जाओ. I wish I could stay, but I must leave. Once a year, I will fly over your cottage and call you. I promise, the girl said gently. गर्ल ने क्या कहा कि काश मैं रुक पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि साल में एक बार जरूर कॉटेज के ऊपर से आऊँगी और मैं तुम्हें पुकारूंगी. ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे. As she spoke, she changed into a beautiful snow crane. She spread her wings that shone like snow crystals and flew into the clouds and disappeared among the mountains of snow. Disappeared means गायब हो जाना. जैसे ही उसने कहा वो दोबारा से किस में चेंज हो गई? स्नो क्रेन में चेंज हो गई. उसने अपने विंग्स को जो है अपने विंग्स को फैलाया और उसके बाद क्लाउड्स में डिसअपियर हो गई, उड़ करके चली गई.
The old couple got a large sum of money for the silk cloth. They lived happily but remembered their snow crane daughter. उसके बाद क्या हुआ? ओल्ड कपल के पास जो है बहुत सारा पैसा था और वो पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी रहे और उस जो उनकी स्नो क्रेन डॉटर थी उसको वो हमेशा याद करते थे। तो देखा बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हमें अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरा, हमें दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। आई होप you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.